हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में लेसन 21 द फ्लेवर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड के जायके। फाइंड थाईलैंड इन गिवन मैप। आपके पास जो मैप है, नक्शा है, उसमें थाईलैंड को ढूंढिए। लिटिल टॉय स्वान वेलकम अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस विथ फोल्डेड हैंड्स। दिस स्टैंडर्ड थाई gesture of greeting is called the vai. Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha's statue, and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. Thai people are warm-hearted, courteous, ever smiling, and their hand-working nature is inspiring. Our stay in Thailand was enriching and very exciting. Thailand is bordered by Laos and Cambodia on the east, the Gulf of Thailand and Malaysia on the south, and Andaman Sea on the west. In Thai language, the word Thai means freedom. Thailand's official name till May 11, 1949 was Siam, which is still used by many Thais, especially the Chinese speaking minority. Little Doi Swan ne welcome us at the gate of the neat looking guest house with folded hand. लिटिल डॉय सैन ने तय किए हुए हाथों से, यानी कि अपने हाथों से साफ सुथरे दिखने वाले गेस्ट हाउस के गेट पर हमारा स्वागत किया। आपको इमेज में दिख रहा होगा, उन्होंने अपने हाथ को जोड़े हुए हैं, दोनों हाथ उसने जोड़े हुए हैं और गेस्ट हाउस है वहाँ, उसके गेट के बाहर उन्होंने हमारा वेलकम किया। This standard Thai gesture of greeting is called the vai. अभिवादन के इस मानक थाई इशारे को वाई कहा जाता है। जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया उनका, उसको हम वाई कहते हैं। Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statue and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. Flowers, फूल, कलरफुल ड्रेसेस, रंग बिरंगी पोशाक, ब्यूटीफुल बुद्धा, सुंदर बुद्ध की मूर्तियाँ, एंड टेम्पल्स, मंदिर हमें दक्षिण पूर्व एशिया के इस अनूठे देश से परिचित कराते हैं। थाई पीपल आर वार्म-हार्टेड, courteous, ever smiling, and their hand-working nature is inspiring. थाई लोग गर्म दिल वाले, विनम्र, कभी मुस्कुराते हैं और उनका मेहनती स्वभाव प्रेरणादायक है। Our stay in Thailand was enriching and very exciting. थाईलैंड में हमारा प्रवास समृद्ध और बहुत ही रोमांचक था। Thailand is bordered by Laos and Cambodia on the east. थाईलैंड की सीमा पूर्व में लाओस और कंबोडिया थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण में मलेशिया और पश्चिम में अंडमान सागर से लगती है। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम। थाई भाषा में थाई शब्द का अर्थ स्वतंत्रता होता है। फ्रीडम यानी स्वतंत्रता होता है। जो थाई की लैंग्वेज है उसमें थाई का जो मतलब है वो स्वतंत्रता है। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम till May 11, 1949 was Saimin, which is still used by many Thais. 11 मई 1949 तक थाईलैंड का आधिकारिक नाम सियाम था, जो कई थाई लोगों के द्वारा उपयोग की जाती थी, स्पेशली द चाइनीज स्पीक मिनोरिटी। विशेष रूप से चीनी भाषाई जो अल्पसंख्यक लोग हैं
उनके द्वारा बोली जाती थी। We sat in the open terraces of the guest house in the morning sun, being a November morning. The weather was quite cold. Chui Birthday, or our caretaker at the guest house, brought us hot coffee and spiced potato chips. He was very busy, but he managed to put him to a chair to sit with us and tell us about the history of Thailand. Chief Bahadway then took us to a small and rather old museum full long away from the guest house where many coins, vessels, metal weapons and record of history were kept. My father pointed at the Thai official calendar on the wall based on Buddhist era. Interesting, Interestingly, the Thai calendar is 543 years ahead of the Western calendar. This means the year 2005 AD will be considered as 2548 AD according to the Buddhist calendar. We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun. हम सुबह की धूप में गेस्ट हाउस की खुली छत में टेरेस में खुली छत में बैठे थे. बिगिंग अ नवंबर मॉर्निंग, नवंबर की सुबह थी. द वेदर वॉज क्वाइट कोल्ड, मौसम काफ़ी ठंडा था. Jay Behedway, our caretaker at the guest house, brought us hot coffee and spiced potato chips. जो अतिथि गृह, जो गेस्ट हाउस को अतिथि गृह कहते हैं, गेस्ट हाउस में हमारे कार्यवाहक चुई बहवाड़े ने हमें गर्म कॉफ़ी और मसालेदार आलू चिप्स आप लोग खाते होंगे, जो स्पाइस होता है जिसमें मसाले लगे होते हैं, आलू के चिप्स लाएं. वे जो है बहुत बिजी थे. ही वॉज वेरी बिजी, वे बहुत बिजी थे, लेकिन बट वी मैनेज टू पुट हिम टू अ चेयर टू सिट विद अस एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड. वे बहुत ही बिजी थे, फिर भी उन्होंने हमें कुर्सी पर बैठने को कहा और हमारे साथ बैठे भी और हमें थाईलैंड के इतिहास के बारे में बताने के लिए तैयार भी हो गए. वो हमें थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताने लगते हैं. Chief Behwade then took us to a small and rather old museum a furlong away from the guest house where many coins, vessels, metal weapons and record of history were kept. Chief Behwade हमें छोटे और जो पुराने म्यूज़ियम है, संग्रहालय में ले गया, जो गेस्ट हाउस से बहुत दूर है, जहाँ कई सिक्के, बर्तन, धातु के हथियार और इतिहास के रिकॉर्ड रखे गए थे. My father pointed at the Thai official calendar on the wall based on the Buddhist era. Interestingly, the Thai calendar is 543 years ahead of the Western calendar. मेरे पिता ने बुद्ध काल पर आधारित दीवार पर कई थाईलैंड अधिकारी जिनके कैलेंडर में बताया गया था. दिलचस्प है, कई थाईलैंड जो कैलेंडर होते हैं में 543 यानी 543 साल आगे है. इसका मतलब यह है कि वर्ष 2005 एडी को बौद्ध कैलेंडर के अनुसार 2548 एडी माना जाएगा. तो जो बुद्ध वाला जो कैलेंडर है वो ऑफिशियल कैलेंडर से आगे था. तो जैसे कि अभी 2005 चल रहा है, तो उस कैलेंडर के अनुसार 2548 माना जाएगा. We had planned to go out and see the river banks of Mekong and the flowers of the Chao
Prague River Valley, but suddenly it started raining. We were disappointed because we had to cancel our trip, but Chui Bhavade kept us engaged. We showed us photographs of the lovely Khorat plateau and the highest peak of the Thailand, the Intherium, which is 2576 meters high, situated in the north of the country. The beautiful Chao Phraya River runs into the Gulf of Thailand and the narrower Kra Isthmus flows into the Malay Peninsula. We had planned to go out. हमने बाहर जाने का प्लान किया and see the river bank of Mekong and the flowers of the Chao Phraya River Valley. मेकांग के नदी घाट और चाव प्रयाग जो नदी है उसको देखने के लिए, फूलों को देखने और बाहर जाने का हमने निर्णय लिया था, प्लान बनाया था. बट अचानक इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी. वी वेयर डिसअपॉइंटेड, हम बहुत ही नाराज हुए बिकॉज वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, क्योंकि हमें अपना जो ट्रिप था, जो यात्रा थी, उसको कैंसिल करना पड़ा. But Chew Bavade kept us engaged. लेकिन चुई आवड़े ने हमें अच्छा हमने रखा, एंगेज किया. वी सेव्ड अस फोटोग्राफ्स of the lovely Korat Plateau and the highest peak of Thailand. उन्होंने हमें प्यारी खोरत के पठार और पठार दिखाया और सबसे ऊंची चोटी की तस्वीरें भी हमें दिखाई. Highest of Thailand Doi Inthorian, which is 2576 meter high, situated in north of countries. थाईलैंड के जो डॉय इंस्टियन जो कि 2576 मीटर ऊंचा देश है, जो कि उत्तर में स्थित है. The beautiful Chao Phraya River runs into the Gulf of Thailand and the narrower Krai Isthmus flows into Malay Peninsula. सुंदर चाओ प्राया रिवर थाईलैंड की खाड़ी में चलता है और वे संक्रक्री इस्तुमस बहते हुए मलाय प्रायद्वीप में चला जाता है. तो यहाँ पर हमने पढ़ा थाईलैंड की फ्लेवर्स, उसके जायके के बारे में कि थाईलैंड में क्या क्या है. यहाँ पर लिटी डॉय सैम ने जो गेस्ट हाउस है, अतिथि गृह है, उसमें गेट के सामने हाथ जोड़कर, अपने हाथों को फोल्ड करके जोड़ते हुए हमारा वेलकम किया, स्वागत किया. इस तरह के जो उन्होंने स्वागत किया उसको वाई कहा जाता है. फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल बुद्धा स्टैचू, टेम्पल्स, इन सब का इंट्रोडक्शन है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही अलग दिखाई देता है हमें. जो थाईलैंड में यहाँ पर लाओस और कंबोडिया जो कि ईस्ट में, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट, ये सब थाईलैंड के बॉर्डर्स में जुड़े हुए हैं, बॉर्डर्स में आते हैं. और जो थाई लैंग्वेज है, यानी उस थाई लैंग्वेज में जो थाई का मीनिंग है, जो मतलब है, उसका मतलब होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता. इसके बाद तो जो यहाँ पर बताया गया है कि वे जो है वो गेस्ट हाउस के जो टेरेस हैं, जो छत है, वहाँ पर वो मॉर्निंग्स में जाते हैं. और नवंबर का ये महीना था, मौसम जो है ठंडा था. उन्होंने
जो उनके केयर टेकर है, गेस्ट हाउस के केयर टेकर है, उन्होंने उनको कॉफ़ी पर हॉट कॉफ़ी दी और कुछ पोटैटो चिप्स भी दिए। वे बहुत ही बिजी थे, फिर भी उन्होंने उनके साथ चेयर पुल करते हुए उनके साथ बैठा और उनसे बातचीत किया और थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में भी उन्होंने बताया। हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स है, विज़ल है, मेटल भी कॉइन्स है और जो इतिहास के कुछ रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद वो जो है वो घूमने जाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ उन्होंने रिवर बैंक जो है मेकोंग का, उसको देखना चाहा। फ्लावर्स ऑफ चाओ प्राया रिवर की जो घाटियाँ हैं, चाओ प्राया रिवर की जो घाटी है उसके फ्लावर्स सब देखने की उनका प्लान था। लेकिन सडनली क्या होता है, अचानक से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, वे नहीं जा पाते, उनकी जो ट्रिप है वो कैंसिल हो जाती है। फिर भी उन्होंने जो चाउ पापड़ है उन्होंने उनको फोटोग्राफ्स दिखाए जो कोरट पटाऊ है, और जो थाईलैंड के हाईएस्ट पीक ऑफ जो जिनका नाम होता है डाई इंथरियन, इसको उनकी फ़ोटो दिखाई जो कि बहुत ही ऊंची होती है और ये जो है वो नॉर्थ उत्तर दिशा में, उत्तर देश में ये स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने थाईलैंड के बारे में यहाँ तक जाना। इसके बाद इसके बारे में और थाईलैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।